ओके बच्चों, फंगल सेल वॉल कंपोनेंट्स के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर से क्लियर हो गई है बच्चों, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ना हम डिस्कस कर सकते हैं बीच बीच में, ना कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इमेज देखो आप लोग, इमेज से सब कुछ क्लियर है। व्हाट इज दिस? ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स, ठीक है। उसके ऊपर आपका ऑरेंज कलर में कुछ नजर आ रहा है। दिस आर काइटिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। काइटिन का केमिकल्स, अब मैं केमिकल्स नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों, अदरवाइज यू विल गेट एनॉयड एंड आई डू नॉट इंटेंड टू एनॉय माय यंगस्टर्स एट ऑल बच्चों, ठीक है। तो काइटिन फॉर्म्स इनर मोस्ट लेयर, मैंने क्या बताया था? फंगल वॉल इज मल्टी लेयर्ड, फंगल वॉल इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द काइटिन मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म इनर मोस्ट लेयर, ठीक है बच्चों। लार्जली दिस एंटायर पोर्शन इट इज फॉर्म्ड बाय 80 to 90% by mass formed by carbohydrates. These are larger molecules of carbohydrates called polysaccharides, ठीक है। एक फैक्ट छूट गया था बच्चों, इन डिफरेंट लेयर्स जो these are present in the form of microfibrils. what are these microfibrils? ये आप लोग के लिए टास्क है बच्चों। these polysaccharides are present in the form of microfibrils. मुझे अच्छी तरह से याद है +1 2 में सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर को काफी लंबे चौड़े से तरीके से समझाया गया है ना, माइक्रोफाइब्रिल्स। सो दिस polysaccharides are found in the form of microfibrils and differently arranged microfibrils, ठीक है। मींस अलाइनमेंट, हाँ जनरली एक हल्का सा ये है, ये वाला डायग्राम ये वाला थोड़ा सा गलत है बच्चों, ठीक है। इसमें ऐसे दिखाया गया है ना, इस तरह से अरेंज, ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे, ठीक है। all the layers constituted largely by different type of polysaccharide molecules, and these are present in the form of microfibrils, and these microfibrils in different layers are arranged almost horizontally but in a different fashion, ठीक है। कुछ ऐसा जैसा हॉरिजॉन्टल होंगे, कुछ थोड़ा सा एंगल बढ़ा के होंगे, कुछ थोड़ा और एंगल बना के होंगे, ठीक है। देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट, however they intend to lie horizontally, ठीक है। so chitin forms innermost layer, whereas a complex structure which is formed by association of a carbohydrate called a polysaccharide called menon and a protein, thus the complex structure formed is called a glycoprotein, or here it is menoprotein. It forms outermost layer, you can see here is glucose or here is protein, ठीक है। so menoproteins form outermost layer and chitin forms innermost layer, whereas different glucans they form a central layer. And what different glucans I have discussed? Glucans plus chitosan. Chitosan is not glucan, ठीक है। chitosan, it is some modified glucan. Why? Because basic molecule, sugar molecule is glucose here also, ठीक है। and what are these glucans? One is cellulose, another one is cellulose, ठीक है। and what is cellulose? In fact beta 1,4 glucan. What is cellulose? It is beta 1,3 glucan, and there is one more type of glucan mentioned, beta
1,6-glucane. These are also present in different concentrations and present in central layer. I will share second image with you, ठीक है, so as to make things more clear. So this is it बच्चों, ठीक है. This is plasma membrane, bilayered, ठीक है. This is one phospholipid layer, this is another phospholipid layer with their heads projecting outwards and tails of fatty acids inwards, ठीक है. इस पे ज्यादा नहीं जाना हम लोगों ने, ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं जाना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. So this is first layer made up of chitin, almost horizontal. After that, next layer comes, which is made up of glucane. This is 1,3-glucane called cellulose, ठीक है. And then again some cellulose मैंने बताया बच्चों, एल्गी में बहुत ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, जैसे यहां पर काइटिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है. फंजाई में, फंगल सेल वॉल में काइटिन सब में मौजूद होना चाहिए, एल्गल सेल वॉल में सेल्यूलोज सब में मौजूद होना चाहिए, ठीक है. तो इसके अलावा और क्या बचा है बच्चों? हाँ, रिगार्डिंग सेल्यूलोज मैंने बताया था. सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन लोअर फंजाई इन द मेंबर्स ऑफ मेस्टिगोमाइकोटिना. दूसरा बताया था काइटोसन. Chitosan also constitute this central portion, and chitosan formed by glucosamine and N-acetyl glucosamine, a polysaccharide called chitosan. This is present in zygomycotina, whereas menoproteins are present in ascomycotina members and basidiomycotina members, ठीक है. So this is it, ठीक है. इससे ज्यादा क्लियरिटी अब और देने का, क्लियर करने का जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, सब समझ चुके हैं. हल्का अगर ये इन दोनों के बारे में समझना हो, ये दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बच्चों, है ना. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स. +1 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? टनल प्रोटीन्स, ठीक है. टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं और इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज दे एक्सटेंड थ्रू आउट द विड्थ ऑफ बाइलेयर, ठीक है. एंड दीज टू shown here are some having enzymatic function. This is chitin synthase, मतलब this enzyme is responsible for synthesis of chitin synthase. This enzyme synthesizes chitin. Second one, beta 1,3-glucane synthase, means this enzyme synthesizes cellulose. Cellulose, the most abundantly found polysaccharide or carbohydrate in fungal cell wall. This is it बच्चों, ठीक है. Now we move to next slide. ओके, अब मैं धीरे धीरे से पढ़ता रहूंगा बच्चों, ठीक है. और जहां पर भी मुझे लगे कि कोई चीज एक्सप्लेन नहीं है, वहां पर मैं थोड़ा सा I will throw some light. Okay, cell wall of fungus is a rigid, multi-layered structure. Each layer consisting of differently oriented microfibrils made up of chitin, cellulose, cellulose, chitosan and menon. Chitin forms innermost layer, menon forms outermost layer when it associates with some proteins and form menoprotein, whereas cellulose, cellulose and chitosan, they form central layer of fungal cell wall, central middle layer. In other words, different types of carbohydrates are present in majority, approximately 80 to 90%, 85 to 90% in fungal cell wall, ठीक है, and others being proteins, different type of proteins. Presence of chitin is the characteristic feature of a fungal cell wall, like presence of cellulose is the characteristic feature of algal cell wall. Rigidity मैंने बताया था, शुरू में बताया था, fungal cell wall is multi-layered or multilaminate and rigid. That rigidity is largely provided by chitin.
which forms innermost layer which is close to plasma membrane. Chemically, chitin is a homopolysaccharide and consists of N-acetyl glucosamine molecules. Next, chitin is also known as fungal cellulose. Why, बच्चों? Should we discuss it one more time? Okay. मैंने बताया था कि काइटिन किससे बना है? ग्लूकोज से. सेलुलोज किससे बना है? ग्लूकोज से. ठीक है. काइटिन कैसे बनता है? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं. और सेलुलोज कैसे बनता है? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, है ना. फिर आप बोलोगे सर ये डिफरेंट कैसे हो गया? ये काइटिन भी तो सेलुलोज ही कहला सकता है. लेकिन बच्चों, काइटिन जब बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में छोटा सा चेंज आता है. वो क्या चेंज है? कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके साथ CH3COONH2 ये जुड़ जाता है. एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप. ठीक है बच्चों. तो क्या बोल सकते हैं हम इस केमिकल को? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. ठीक है. सो यही डिफरेंस है बच्चों, बाकी सारी चीजें सेम है. इसी वजह से सेल्यूलोज को या काइटिन को हम फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं. पिछले लेक्चर में एक मिस्टेक हो गया था, सॉरी बच्चों, है ना. खासकर वो जब उसके काइटोसेन के बारे में जब मैं बता रहा था, काइटोसेन मैंने अभी चेक किया था, है ना. मैं हर बार ऐसे करता हूं, जब वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं पूरा चेक कर लेता हूं एक बार रिपोर्ट को चला के. ठीक है. काइटोसेन को मैंने क्या बोला था कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन मॉलिक्यूल्स प्लस ग्लूकोज अमीन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है. ग्लूकोज अमीन मींस जब ग्लूकोज के साथ एक अमाइनो ग्रुप जुड़ता है. तो मैंने जो फार्मूला लिखा था ये अमोनिया लिख लिया था गलती से बच्चों, NH3. ठीक है. अमाइनो ग्रुप होगा उसमें एक H एटम कम हम कंसीडर करेंगे. दिस इज इट, NH2. व्हेन NH2 ज्वाइंस विद ग्लूकोज, ठीक है, इट फॉर्म्स ग्लूकोज अमीन, है ना. और आपको पता है काइटोसेन जो है फॉर्म करता है बाय polymerization of randomly arranged glucose amine molecules and N-acetyl glucose amine molecules. ये हो गया. Now we move to next slide. Menon is present in the form of menoprotein and it is present in outermost layer of cell wall. हो गया. In between inner chitinous and outer menoprotein layer, glucanes are there, different glucanes are there. One is cellulose जो कि बहुत कम पाया जाता है. वन इज केलोज जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है. देन देयर इज वन मोर बीटा 1,6 ग्लूकेन. सॉरी टू से बच्चों, इसका कॉमन नेम मुझे नहीं मालूम पड़ा है ना. इंटरनेट छान छान के मारा. मैंने बायोकेमिस्ट्री का लेनिंजर भी देखा है, बायोकेमिस्ट्री का बॉयज का बुक भी दिया हुआ, उसमें भी कहीं मेंशन नहीं है. ठीक है. तो आप लोग इसको सिंपल ऐसे बीटा 1,6 ग्लूकेन लिख सकते हो. ठीक है. बीटा 1,3 ग्लूकेन दैट इज केलोज is the most abundantly present beta glucan in fungal cell wall, or you can say it is most abundantly found polysaccharide in fungal cell walls, whereas cellulose is the least abundantly present polysaccharide which is a beta glucan in fungal cell wall. Okay, it is present in members of Masticomycotina only. A brief outline is given. Okay, brief outline of distribution of polysaccharides in next slide. This is it बच्चों. 5 subdivisions. This is last slide. ठीक है. With this our lecture will conclude. Chitin is universal in fungal cell wall.
It is present everywhere in Mastigomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, and Deuteromycotina. Whereas, let us see, cellulose. Cellulose is present only in Mastigomycotina members. Chitosan is present only in Zygomycotina, and menon is present in Asco and Basidiomycotina. Asco and Basidiomycotina. Whereas these glucans generally beta glucans, ये मैंने किताब से ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है। ये ग्लूकेन असल में इसमें ज्यादातर जो प्रोपोर्शन होगा बच्चों केलोज का होगा। केलोज जो बीटा ग्लूकेन है ये कॉमन जैसा टर्म है, ठीक है। बीटा ग्लूकेन एक कॉमन जैसा टर्म है। दो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ना। एक हमारे पास बीटा 1,3 ग्लूकेन है, दूसरा बीटा 1,6 ग्लूकेन है, ठीक है। तो उनके बीच में से जो ये केलोज है, मेरे ख्याल में ये केलोज को रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर, ठीक है। तो बीटा 1,6 ग्लूकेन किन किन में मौजूद है, किन किन में नहीं है, इसका डिटेल मेरे पास भी नहीं है, आपको भी ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है बच्चों। इतना जो लेक्चर में जो कंटेंट्स है ये बहुत सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। फिर एक गारंटी दूं बच्चों, फंगल सेल वॉल कंपोनेंट आएगा, ठीक है। मान लो 10 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। अगर सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया ना, तो बच्चों हाँ गलती नहीं करना है, ना स्पेल वाला गलती ना ग्रामर का गलती, ठीक है। तो 10/10 नंबर आने का गारंटी है बच्चों, ठीक है। हाँ, इस चीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर ये ज्यादा हाँ प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए हमारे को, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड था। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, ठीक है। खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचने का मौका दीजिए, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।